Hello guys, I'm Dr. Ashay Khanna and you're watching Inspiring Minds. In this video, I'm going to give you a strategy for last 90 days, for last 80 days, for 100 days. You can use it according to your own needs. You can squeeze it in and you can elongate it according to you, like whatever you feel is right for you. But what I personally feel is I have used the same strategy, and over the years many students have reached out to us and they are wanting to have the strategy which actually works. Last year also, this video you can check on top here as well. I posted a 3-month strategy and it really worked out very well for many students. And now we have come up with a new strategy, which is actually a mix of which I personally feel is going to work really well for all the students. And before we start, I just want to give you some insights. See guys, it's all about your dreams, but you have to believe in your dreams first of all, and then only you can achieve it. As you can see on top in this slide as well, dream it, believe it, and then achieve it. So what it needs is your own belief. If you believe in yourself, then you can surely achieve. But if you have like नहीं होगा यार, नहीं हो पाएगा, अगली बार देखेंगे, बहुत कुछ है, these things are actually not gonna help any one of you. ठीक है? So I will use हिंदी इंग्लिश both in this video. थोड़ा सा बड़ा होने वाला ये वीडियो, please bear with it, but by the end of this video I can surely tell you कि कुछ लेके ज़रूर जाओगे. ठीक है? So let's start. Now you see, अगर गोल है आपका, for example your goal is to clear this screening exam, you want to be a doctor in India. I know, I have gone through the same journey. मुझे पता है what it takes. Okay, so ये अगर गोल है, so you have to have the vision first of all. You have to plan it. You should have a proper planning in front of you. Then only you can think about achieving it. ठीक है? If you don't have any plan but you have a goal, then it is just a wish, it is an illusion. Okay, so you cannot say कि यार करना तो था लेकिन पता नहीं कैसे, जो समझ में आया कर लिया, बीच में छोड़ दिया, स्टार्ट कर लिया, you don't have any direction as such, then it gets very difficult और बहुत messy हो जाती हैं, then it becomes very like नहीं मज़ा आएगा. So what I want to tell you is, first of all you have to enjoy the process. ठीक है? मज़े लेके पढ़ाई करो. डोंट थिंक अबाउट इतना स्कोर चाहिए, इतने कम दिन है, ये है वो है. सो वो सब नहीं सोचना है हमको अभी के लिए. ठीक है? हमें सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, अपना बेस्ट देना है, उसके बाद जो होगा बाद में देखेंगे. ठीक है? सो अभी वो सोच के प्लानिंग अपनी करो. सो वॉट यू नीड हियर इज अ प्लान. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू डोंट हैव एनी प्लान तो कोई फायदा नहीं है कुछ भी करने का. ठीक है? सो प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड नाउ आई एम गोना गिव यू अ बेसिक प्लान. मुझे लगता है कि दिस प्लान इज रियली गोइंग टू वर्क वेरी वेल, बट स्टिल इफ यू फील कि आपको थोड़ा इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, देन इट्स टोटली अप टू यू. द PDF of this the presentation I'll put in the Telegram group. You can check the link for the Telegram group in the description and you can go and you can download it from there. ठीक है? So let's move ahead now. First of all, अब जब भी प्लानिंग की बात आती है, इट हैज़ टू स्टार्ट विद दी लाइक व्हाट इज द सिलेबस ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट FMG, सिलेबस इज समथिंग जो एज सच इतना ज़्यादा हमारा काम का नहीं है, बिकॉज ऑल दी 19 सब्जेक्ट्स आर देयर, मोर और लेस एवरीथिंग इज देयर. बट व्हाट मैटर्स इज कि वेटेज कितना है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है और हमें क्या उससे निकालना है. ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम गोना टेल यू, ये आप 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हो सारे जो ऊपर लिखे हुए हैं. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट सब्जेक्ट्स जो एक्चुअली बहुत ही हेल्प करते हैं स्कोर में. लाइक उसके बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता इस एग्जाम में इन पर्टिकुलर. सो इट्स ऑब्स गाइनी, PSM, ENT बहुत हाई स्कोरिंग है, इजी है और यू कैन रीड इट एज वेल. सर्जरी, मेनी क्वेश्चंस आर देयर. सो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जो आप कर सकते हो और दे गोना बी फ्रूटफुल एज वेल. सो अब अगर हम बात करें बाकी सब्जेक्ट्स की, फॉर एग्जाम्पल अब साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, दी सब्जेक्ट्स हैव जस्ट 5 मार्क्स. सो इनका मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू लीव दीज सब्जेक्ट्स. ठीक है? दिस इज द मिस्टेक विच आई डिड इन माई प्रिपरेशन एंड इट रियली
it could have costed me a lot, but luck was with me, so hence it didn't cost me that much. But now I want to tell you, जो mistakes करी हुई हैं वो mistakes आप avoid करो. So यहाँ पे अब जैसे साइकेट्री है, डर्मेटोलॉजी है, एनेस्थीसिया है, ऑर्थो है, पीडिया है, ENT, ऑफ्था में भी बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं. सो दीज आर लाइक जो आपको कम टाइम में मार्क्स मस्ट दे देगा. ओके, सो वी डोंट हैव टू इग्नोर दीज सब्जेक्ट्स. सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, सबसे पहले तो यू हैव टू डिकोड कि वेयर डू यू स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Okay, so let's make 3 separate groups. For example, first group, those who have not studied anything. For example, they haven't even started preparing for this exam. Second one is those who have studied, but at this point of time, they don't have any direction, like where to go, where to head towards, and they are very confused. Okay. And the third ones are those who are doing pretty much well. They are well on track, and just they need to revise it again and again, and they want to sharpen their skills. So now, primarily our focus is for these 2 groups. Okay, so those who are on track and need revision, I would suggest you to just forward the video and go to revision part, check on the timestamp and go to revision part, and then just see about the test series. Okay, but my focus is those who have not even started yet and those who don't have any direction for now. You have time, don't lose hope, just keep preparing. Just give your best. अगर आप अपना बेस्ट करोगे, forget about the result. If you do your best, I am very much sure कि अच्छा ही होगा. ठीक है, so now we're gonna make a strategy. अगर नहीं किया है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा, वो सब सोच के हमें कुछ मिलेगा भी नहीं. पेपर कब होगा, कब नहीं होगा, no one knows. So for now, the strategy which we are making here is, we are assuming that exam would be somewhere around 14th और 15th ऑफ अगस्त. ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी अभी के लिए ये मान के चल रही है. ठीक है, सो मे बी 2-3 दिन 4 दिन पहले भी हो सकता है, मे बी इट माइट गो 20th अगस्त या सितंबर के इनिशियल वीक में भी हो सकता है. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि हमें प्रिपरेशन अपनी ऐसी करनी है कि हम 10th ऑफ अगस्त तक पूरे रेडी हों. ठीक है, सो हमारा फोकस ये है कि हमें 10th ऑफ अगस्त तक रेडी रहना है. सो नाउ हाउ वी आर गोना स्ट्रैटेजाइज इज, यू सी, वी आर गोना मेक डिफरेंट सेगमेंट्स. लाइक हम सेगमेंट्स बनाएंगे, बट ये सेगमेंट्स क्यों और कैसे बनेंगे, सो थोड़ा सा आई एम गोना टेल यू. सेगमेंट्स आर एक्चुअली, हम एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे. इट्स नॉट लाइक कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सर्जरी, वी आर नॉट गोना रीड सर्जरी फॉर 10 days 12 days in a stretch, because that gets very boring or productivity decreases over a time, and then it's just like you just flip on the pages and you don't get anything out of it. So what we have to do is, we have to make the segments a group of subjects that we are going to read simultaneously, so that हम एक synchrony में अपना syllabus खत्म करें और हमारे पास एक good chunk of subjects की knowledge भी हो, and then we'll keep on revising everything. ठीक है, so now this will make you more productive. How? Because जब आप बोर नहीं होगे तो आप फ्रीक्वेंटली अच्छी एफिशिएंसी के साथ करते जाओगे काम. ठीक है, सो जितना ज़्यादा आप रीड करते जाओगे उतनी ज़्यादा नॉलेज आती जाएगी, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ हो रहा है. सो दैट इज़ व्हाट अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज इज ऑल अबाउट. सो व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एंड सीइंग, यार हाँ अब मेरे काफ़ी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं, सो दैट इज़ द मोमेंट देन वेयर यू हैव द करेज टू मूव ऑन. ओके, आई नो देयर आर मेनी रोड ब्लॉक्स, बहुत बार बर्नआउट भी होगा, बट वी हैव टू स्टे अवे एंड वी हैव टू ट्राई एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड. जस्ट पुश योरसेल्फ अप. ओके, एंड ऑल्सो वी हैव टू अचीव मोर इन लेस टाइम. सो वी आर नॉट गोना स्टिक टू एनी वन सब्जेक्ट. करते जा रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, बट स्टिल वी आर वेस्टिंग आवर टाइम. सो दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोना डू. ठीक है, सो नाउ I'm gonna make these segments and how these segments are. See, first of all, they are according to the integration, and also there are many topics that get overlapped with each other in different subjects. Okay, so now this segment in particular, segment A, you won't find any integration or overlapping. Okay, so but why this segment is still here? Because in this segment you will cover around 3.5 subjects. So which is actually a very
good number to start with. But while starting this segment, you'll feel like, sir, everyone is studying surgery, they are studying PSM, they are studying obs gynae medicine, but why are you asking us to start with dermatology, anesthesia and psychiatry? This is because I need you to have that push, to have that momentum initially. Don't think about other people, other students, your seniors, those who just spread on the ज्ञान वर्षों का भी टाइम नहीं है. What we want is कि हमारा सिलेबस मिनिमम टाइम में कवर होना चाहिए. For that, we are going to include these 3 subjects: dermatology, anesthesia, psychiatry. These are like a couple of days subjects. एक 2 दिन वाले subjects हैं जो आराम से आपके हो सकते हैं, ठीक है. But then we have taken medicine, half of the medicine in this. If you want the topics for most of the like important subjects, like if you cannot read the subject completely, just head on to the Telegram group and you'll get the topic list as well, ठीक है. So now these 3.5 subjects we have to cover in 8 days. This is the most important thing. ये टाइम लिमिट जो है ना, ये टाइम लिमिट हमें मेंटेन करके रखनी है, ठीक है. हमें अपने आप को पुश करते रहना है कि नहीं, हमें 8 डेज में ही खत्म करना है. एंड इट्स नॉट लाइक कि आप डर्मेटोलॉजी को 2 दिन 3 दिन लेके बैठे हो, उसके बाद एनेस्थीसिया. हमें मिक्स करके अपना टाइम टेबल बनाना है. टाइम टेबल आई एम लीविंग अप टू यू, ठीक है. 10 आवर्स अ डे, 12 आवर्स अ डे, मुझे नहीं पता. मुझे आपको मुझे करके देना है ये सब कुछ, ठीक है. सो नाउ डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकियाट्री एंड मेडिसिन, हाफ ऑफ द मेडिसिन वी हैव टू कवर इन 8 डेज. सेगमेंट 1 वुड बी ओवर, ठीक है. सो उसके बाद हमारा फिर टेस्ट होगा. 8 डेज के बाद इन चारों सब्जेक्ट्स का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है. दैट यू कैन गिव ऑन आवर IIM एप्लीकेशन फ्रॉम द एंड्रॉइड स्टोर एंड द एप्पल स्टोर. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. जस्ट डाउनलोड इट. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस टेस्ट सीरीज एज वेल. इट्स जस्ट वी वांट टू गिव इट टू यू सो दैट यू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, ठीक है. सो सेगमेंट 1 हमारा हो चुका. अब हम बात करते हैं सेगमेंट बी की. अब एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है. ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सब आपको इनिशियली करने को बोलेंगे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा. ये सब्जेक्ट्स हम सेगमेंट बी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेगमेंट ए में हमने कुछ अचीव कर लिया है ऑलरेडी. अगर आप इससे स्टार्ट करोगे देन यू विल बी लाइक, यार ये बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. सो इसलिए हमने पहले वो कर लिया. अब हम आते हैं बहुत ही बढ़िया बेसिक सब्जेक्ट्स पे. 3 P's, फिजियो, पैथो, फार्मा. बहुत बढ़िया इसमें से कवर होगा. अब आप अगर इसका देखो, ये देखो, पैथो 13 मार्क्स, फार्मा 13 मार्क्स, फिजियो 17 मार्क्स और आधा मेडिसिन, ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम लेके चलें इसको, चलो 15 मार्क्स का यहाँ से हो गया, 17 की फिजियो हो गई, 13 की पैथो हो गई. सो 30 ये हो गया, 30 और 15 45 और अगेन 13. सो दिस इज समवेयर अराउंड 60 मार्क्स. सो अब अगर आप अपने ये देखोगे कि ये आपका कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दिस इज समवेयर अराउंड 60 to 65 मार्क्स आपके एक सेगमेंट में. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है. ये तो हमें करना ही करना है बहुत अच्छी तरीके से. इसके लिए हमारे पास है 15 डेज. आर यू गेटिंग इट? तो ये हमें करना है खत्म 15 डेज में. 15 डेज में ये हो जाएगा. इसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा. अब हम आते हैं सेगमेंट सी पे. सेगमेंट सी इज लाइक, ये इतने ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है सब्जेक्ट्स, बट ये मिसलेनियस सब्जेक्ट्स हैं जस्ट टू से. सो नाउ FMT, फोरेंसिक्स, थोड़ा सा आपको अगर नहीं पढ़ा होगा पहले तो बोरिंग लगेगा, बट इंटरेस्टिंग लगेगा इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट प्रॉपरली. एंड देन ENT, शॉर्ट एंड वेरी गुड. ऑफ्थल्मोलॉजी, शॉर्ट एंड गुड. बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, ENT और ऑफ्था, ये FMG में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते. सो यू कैन कवर अच्छे नंबर ऑफ मार्क्स इन लेस टाइम. सो इसके लिए हमारे पास है 7 डेज. आर यू गेटिंग इट? एक हफ्ते में ये तीनों हमें खत्म करने. सो अब हम आगे चलते हैं अपने सेगमेंट डी पे. इतना कुछ हमारा हो चुका है. सो अब हम इन सब्जेक्ट्स पे आराम से आ सकते हैं. अब इसमें क्या करना है, अब आप अगर देखोगे तो ये इंटीग्रेशन इतना बढ़िया है इन चारों सब्जेक्ट्स का, दैट यू विल कवर बहुत बढ़िया से. अनाटमी, सर्जरी, ऑर्थो एंड रेडियो. सो दीज 4 सब्जेक्ट्स वी हैव टू फिनिश इन 12 डेज. नहीं पता कैसे करना है, बट आपको करना है. अपना टाइम टेबल बनाओ, कैसे कैसे करना है, कितना कितना एक एक दिन में करना है. होगा और मस्त तरीके से होगा, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फिनिश दी सब्जेक्ट्स इन 12 डेज. आफ्टर दैट सेगमेंट ई, ऑब्स गाइनी, आई टोल्ड यू राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऑब्स गाइनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडिया का बहुत सारा पार्ट ऑब्स गाइनी में ओवरलैप होता है, बायोकेम का काफी पार्ट पीडिया में ओवरलैप होता है. सो दिस सेगमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली स्टूडेंट्स लीव बायोकेम एंड पीडिया which gets very dangerous. So I won't suggest you to leave any subject because you never know कौन से subject में से कितने marks का वहाँ पे shuffle हो सकता है. And what happens is in the exam paper 1 and paper 2 you won't even realize कि कौन से subject का question है because everything is so mixed up. ओके सो इतना जम्बल्ड अप होता है सब कुछ, इट गेट्स डिफिकल्ट टू एनालाइज कि यार ये क्वेश्चन यहाँ से है, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं. वहाँ पे जाके वेन एवर यू सी एनी रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल एनी साइकिल, यू विल बी लाइक यार ये तो बायोकेम है, ये तो पढ़ा ही नहीं है. सो दैट थिंग व्हेन इट हिट्स कि यार ये तो पढ़ा नहीं है, वो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन भी खराब करवा देती है. सो वॉट आई वॉन्ट इज कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाओ. ठीक है, सो अभी हम ये भी पूरा करके जाएंगे और इसके लिए हमारे पास है 10 days. तो अब हमारे 5 सेगमेंट हो चुके हैं, लास्ट सेगमेंट बचा है बस हमारा. सेगमेंट एफ, माइक्रो एंड पीएसएम काफी हद तक इंटरलिंक्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है. पीएसएम इज लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है. मान के चलो अब 35 to 40 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए पीएसएम में से, आराम से आएंगे. एंड माइक्रो 15 to 20 क्वेश्चंस गारंटीड आते ही आते हैं. एंड दीज आर दी सब्जेक्ट्स जो एफएमजीज के काफी वीक होते हैं. सो वाई आई हैव पुट इट इन द एंड इज कि जितना लेट आप लास्ट की तरफ पढ़ोगे इट विल हेल्प यू इन लाइक रिमेम्बरेंस. सो याद रहेगा आसानी से, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है बिकॉज ये वोलेटाइल है. पीएसएम में देयर आर मेनी थिंग्स यू हैव टू मग अप, माइक्रो अगेन देयर आर मेनी थिंग्स जो याद ही करने हैं. ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास है 8 days. अब सारे सेगमेंट हो चुके हैं A B C D E F. ठीक है, सो हमने क्या किया, सेगमेंट ए 8 days में हो गया, सेगमेंट बी 15 days में, सेगमेंट सी 7 days में, डी 12 days में, ई 10 days में, एफ 8 days में. ये जब हमारा सारा हो जाएगा, सो हर सेगमेंट के बाद आप यहाँ पे एक डेट देख रहे हो. ठीक है, ये जो डेट्स लिखी हुई हैं ये डेट्स हैं कब आपके टेस्ट होंगे. तो ये टेस्ट इज नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट बिकॉज एमसीए एग्जाम भी आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट का तो नहीं होने वाला है ना, वहां पे भी सारे सब्जेक्ट साथ में आएंगे. तो सेगमेंट बनाने का फायदा ही नहीं होगा इफ विल नॉट टेक ऑल दी सब्जेक्ट्स टुगेदर फॉर एनी टेस्ट. सो दिस इज व्हाट इज लाइक रिवीजन एज वेल. सो ये जब आप पढ़ रहे हो 4 सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे रिवीजन भी आपका साइमल्टेनियसली हो ही रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे आपने सेगमेंट ए का टेस्ट दिया 29 मई को, सेगमेंट बी का दिया आपने 13 जून को, सेगमेंट सी का दिया 21 जून को, डी का 4 जुलाई, 15 जुलाई, 24 जुलाई. 24 जुलाई तक हमारा सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. दैट इज 60 days. सो नाउ यू इमेजिन 60 days में आपने अपने आप को पुश करके एक टाइम लिमिट के साथ, एक टाइम फ्रेम के साथ अपना सिलेबस खत्म कर लिया. इजंट दैट अमेजिंग? सो क्यों किस चीज का वेट कर रहे हो? जस्ट स्टार्ट ऑन विद द स्ट्रैटेजी, जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग, डोंट वेट फॉर एनीवन. ठीक है, कोई आपके लिए और कोई करने नहीं आएगा. ठीक है, आपको खुद ही करना है. कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग. नहीं हो रहा फिर भी पढ़ते रहो, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता. बट ये मत सोचो कि यार नहीं हो रहा तो अब कैसे होगा. अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सोर्सेज. सर कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें? ठीक है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू, ये वो टाइम नहीं है डिसाइड करने का कि कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें. क्या पढ़ें का रीजन या आपको एक अच्छा सोल्यूशन आई कैन गिव यू इज व्हाई आई एम फोकसिंग एंड स्ट्रेसिंग मोर ऑन टेस्ट सीरीज इज when you start giving test you get to know like what kind of questions are being asked in the exams. Okay, so how you have to read is you have to be at the place of an examiner, like what all questions you can make out of that particular topic or subject. ठीक है, then you start reading it. हमें थोड़ा सा retrospective approach लेना है. So what I'm gonna do is maybe from tomorrow I'll put a sample mock of let's say 100-150 questions and you can just go on the application, you can download it and you can appear it for that mock test. Link would be in the description and just try to analyze like what kind of questions actually come in the exam. So उसके बाद अपने topics पे focus करो. ठीक है, so ऐसे कोई भी random topic उठा के मत पढ़ने लगो और फोकस उन्हीं चीजों पे करो जिसपे आपको लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है. अननेसेसरी हमें कोई चीज कुछ नहीं पढ़नी है. ठीक है, सोर्सेज लिमिटेड रखनी है. अब बात आती है सोर्सेज की, लिमिटेड रखनी है, लिमिटेड रखनी है. ये मैं आपको कैप्स में लिख देता हूं, लिमिटेड रिसोर्सेज रखनी है.
कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यार ये बुक बहुत अच्छी है, ये बुक बहुत अच्छी है, सर्जरी सिक्सर अच्छी है, श्योर सक्सेस अच्छी है, ये रिव्यू बुक बहुत अच्छी है, यहाँ की टेस्ट सीरीज भी ले लेते हैं, यहाँ का TND भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये वन लाइनर की बुक, वो वन लाइनर की बुक, चीजें लिमिटेड रखनी है हमें। जो अभी तक करते आ रहे थे बस वही रखने हैं। सो हियर आई एम गोना गिव यू थोड़ा सा क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, सेल्फ मेड नोट्स आर गोना बी द विनर आउट हियर, ओके। अगर खुद के बनाए हैं सो वो दैट थिंग इज एक्चुअली गोना हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज वो खुद के बनाए हुए हैं ऑलरेडी। एक दो बार आपने लाइक अनकॉन्शियसली आपने उस चीज को रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। सो दैट थिंग गेट्स द मैक्सिमम मार्क्स आउट हियर। बट स्टिल अगर वो नहीं है, you can go with any coaching institute notes. I won't name any coaching institute out here, but you can go for any coaching institute notes. More or less सबके सेम ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद रिव्यू बुक्स या ऑनलाइन वीडियो से पढ़ना है तो ऑनलाइन वीडियोस पढ़ लो, बेसिक से जाना है या आपको रिवीजन वीडियो से जाना है, वो आपके ऊपर है। श्योर सक्सेस, अरविंद अरोड़ा, जो भी बुक पढ़नी है, इट्स अप टू यू। बट वॉट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू इज लिमिटेड सोर्सेज रखो। अब ज्यादा इधर उधर जंप करने का टाइम नहीं है। स्टिक टू लिमिटेड रिसोर्सेज, जो पढ़ना है वही पढ़ो, जो पढ़ते आ रहे थे वही पढ़ो, नई चीजें इस टाइम ऐड नहीं करनी है। वही पढ़ना है जो चीज हम एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवाइज कर पाए। सो वट एवर यू फील इज कि यार अब पढ़ तो रहे हैं, पता नहीं रिवीजन का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो चीज पढ़नी ही नहीं है। देखो ना, अभी 19 सब्जेक्ट्स एक टाइम पे इन दी एग्जाम, अगर अभी याद नहीं रहेगा तो तब कैसे याद रहेगा, ठीक है। अब रिवीजन पे आ जाते हैं। रिवीजन मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देयर इज एनीथिंग दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इज रिवीजन। लिमिटेड पढ़ के जाओगे, लेकिन अगर रिवाइज करोगे देयर आर मैक्सिमम चांसेस की सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। सो अब मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट मॉक हमारा होगा 1 अगस्त को, विच वुड बी ABC सेगमेंट आप पीछे जाके चेक कर सकते हो। DEF सेगमेंट का एक साथ मॉक टेस्ट होगा 8 अगस्त को। कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके 4 होंगे, 10th, 11th, 12th, 13th, ठीक है। एंड ये सारी चीजें आप अपनी टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप को डाउनलोड करो टेस्ट सीरीज के लिए ऐप स्टोर से, लिंक उसका भी मैं आपको दे दूंगा। बट आपको करना है, अगर आप करोगे तभी कुछ होगा, अगर आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस विल नॉट हेल्प यू एट ऑल, नॉट हेल्प यू एट ऑल, मार्क माई वर्ड्स। उठो, करो, टाइम है, डेज हैं, लेकिन अब भी इफ यू कीप ऑन वेस्टिंग देम कि बस हो जाएगा, दैट अप्रोच इज नॉट गोना हेल्प यू, ठीक है। नाउ और नेवर, टाइम मिला है, यूटिलाइज इट ढंग से और बस फोड़ दो। कर सकते हो, आपको ही करना है, ठीक है। इसको याद रखना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। ट्राई करोगे, अपना 100% दोगे तो एटलीस्ट ये चीज बोल सकते हो, एटलीस्ट आई ट्राइड, नॉट फॉर एनीवन एल्स बट फॉर योरसेल्फ। भाई सुन रहे हो ना, करना है ना काम, पढ़ाई करनी है ना, तो उठो और करो। जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। जो भी करना है, वी कैन हेल्प यू, जितना हमसे हो सकता है वी गोना डू एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन करना आपको ही है। नो वन इज गोना स्पून फीड। सारा कुछ आपको बता दिया, क्या करना है, कैसे करना है। अब भी अगर नहीं करते हो तो भाई तेरी गलती है। हम जितना कर सकते थे हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। इवन इफ 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, उनको मैं बता रहा हूं आपको फायदा होगा इन द एग्जाम, ऑन द एग्जाम डे, इन द एग्जाम सेंटर। यू विल बी लाइक यार बहुत अच्छा हुआ, वो टेस्ट सीरीज करी थी, एक लिमिटेड फॉर्मेट के साथ हमारी पढ़ाई हुई, हमारा सिलेबस भी हुआ, हमारी रिवीजन भी हुई। सो इट्स ऑल अबाउट दैट एड्रीनलिन रश। उसके लिए काम करो, एक डेली मोटिवेशन बनाओ। इट्स नॉट लाइक कि आज मोटिवेटेड हो कल नहीं हो। अपना आपको होना चाहिए कि क्यों करना है ये, क्यों बनना है डॉक्टर। You have studied for 5 years, 6 years, right? Now you have to clear the screening exam to get yourself registered. So इससे बड़ा और आपको मोटिवेशन क्या हो सकता है? Remember all those things that you have heard. Now this is the time to prove everyone wrong. Don't wait for anyone else. I'm telling you again, don't wait for anyone else, because no one is gonna do anything for you. It's just you who has to do it.
If you are ready for this, just comment yes in the comment section down below and let me know whatever you like the most and whatever you want us to change or modify according to your own needs. So if you have liked this video, please don't forget to like it, subscribe to our channel and do hit that bell icon and share it with all your friends. कर दिखा, मौका नहीं मिलेगा दूसरा. Good luck.